Good morning, everyone. Let's start with first question from the exercise 2.2. The question is, find the sum by suitable rearrangement. Now, everyone listen to me very, very carefully. Whenever you will observe suitable rearrangement word, then you will not add directly. You will not add 837 with 208 and then with 363. No, you will not add directly as the heading is suitable rearrangement. Suitable rearrangement means under the bracket you will combine two numbers in such a way that you will get 0. In such a way that you will get maximum 0. Now tell me, here you have three numbers, now 837, 208, 363. By adding which two numbers you will get 0 at the 1st place or at the 10th place? Quickly write down in the chat box. Tell me. You will add 837 with which number by which you will get 0 at the 1st place or at the 10th place. Very good, very good. So this is called suitable rearrangement. Okay. So under the bracket, first of all, you will rearrange 837 plus 363. प्लस 208 इसको बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट. फाइन. नाउ ऐड 837 and 363. 837, 363. You will get 1200 plus 208. Like this. Again add 208 and you will get 1408. So this is the result. This is the meaning of suitable rearrangement. Fine. Suitable rearrangement means under the bracket combine the numbers by which you will get 0. 0 at the 1st place or at the 10th place. Fine. So in exam, if the heading is suitable rearrangement and you will add directly, then you will get 0 marks. No marks is given. Rearrangement means this thing is compulsory. Now come to the next. Come to the second question, A part. Question number 2, A part. Again, the heading is find the product. Product means multiplication by suitable rearrangement. So 2 multiplied by 1768 multiplied by 50. Now students, quickly write down in the chat box according to suitable rearrangement. Mehak, write down your reply in the chat box. According to suitable rearrangement, first of all, you will multiply 2 by which number? For easy calculation, suitable rearrangement make our calculation easy. Mehak, unmute yourself. Yes, ma'am. महक, आई एम सेइंग भी सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब है हमें 0 मिले. आप कह रहे हो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो. बताना मुझे 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 0 मिलता है. करना जरा. मैम 50 से करना है. मैम 50 से करना है. चैट बॉक्स में यू आर राइटिंग. अगर आपको पता है तो आप गलत क्यों लिख रहे हो चैट बॉक्स में? यस. सो अंडर द ब्रैकेट 2 multiplied by 50
and this is 2 multiplied by 50 multiplied by this thing. So 100 multiplied by 1768. This. And the benefit of suitable rearrangement is in the second step calculation is easy and sometimes you can do the calculation orally. ये देखो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन ऑरली हो जाएगी. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ suitable rearrangement. Suitable rearrangement make our sum easy. Okay. Now, Rayman, unmute yourself. Yes, ma'am. Raymond, tell me which property is used here. We have done main three properties now: commutative, associative, and closure property. Which property is applicable here? Ma'am, associative. क्यों? मैंने ग्रुप चेंज किया है कि मैंने सीट चेंज की है? Ma'am, मैंने ग्रुप चेंज किया है कि मैंने सीट चेंज की है? उस दिन मैंने आपको बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डील्स विद सीट चेंज. सीट चेंज करते हैं जब हम. और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डील्स विद ब्रैकेट चेंज. मैंने यहाँ ब्रैकेट चेंज की कि किसी की सीट चेंज की है? ma'am, seat change. So यस, ये देखो मैंने इन दोनों की सीट चेंज की है. मैंने 50 को आगे लिखा, 1768 को बाद में लिखा. सीट चेंज हुई है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Whenever you will observe seat change, it means commutative property. तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, then you will say commutative. और एसोसिएटिव में सीट नहीं चेंज होती, ब्रैकेट चेंज होती है. ओके. Yes. Now come to the next C part. C part is 8 multiplied by 291 multiplied by 125. Now tell me. Heading is suitable rearrangement. So you will multiply 8 by which number out of these two? Good. Well done. Well done. Very good. Yes. And whenever you will rearrange now, always write the numbers under the bracket. Bracket is required. So here 8 multiplied by 125 multiplied by 291. Again, name of property, anyone? Again, which property is used here? Arab Bharadwaj, unmute yourself. Yes, good morning, ma'am. Good morning. Tell me, commutative property or associative property? Ma'am, ma'am, you have ma'am, you हमने seat change किया है. That's why it is commutative property. Very good. ये देखो हमने इन दोनों की सीट चेंज की है. 125 को मैंने सेकंड पे शिफ्ट किया, 291 को थर्ड पे शिफ्ट किया. Very good. So the name of the property used here is commutative. Now multiply 8 by 125. You will get what? Tell me. Yes, students. Very good. 1000 multiplied by 291. So 291 along with 3 zeros. Okay. So this is the result. This is the result. Note down. After this, I will explain F part. F. Come to the F part. F part is, we have 4 numbers. 125, 40, 8,
25. Yes. Agreem, unmute yourself. Agreem, I am saying unmute yourself. Yes, good morning. Tell me the suitable rearrangement जिससे आपका रिजल्ट इजी हो जाए बेटा, बहुत इजी। yes. मैम बोलो बोलो। Suitable rearrangement means combine the numbers in such a way that you will get 0, maximum 0. Yes, agree, unmute yourself. बड़ी अच्छी बात है, अग्री वीडियो भी ऑफ कर ली। Stop writing and put your whole concentration on understanding the concept. Listen, students, whenever you will observe first two number with multiplication, right hand side number with multiplication. Now listen, the condition is first two number with multiplication, last two number with multiplication, or in between either plus sign or minus sign. Then distributive property is applicable. This is the condition of distributive property. First two number multiplication, then last two number multiplication, and in between either plus sign or minus sign. This is the first condition of distributive property. Second condition, one common number in both the groups. इसको हम ग्रुप बोलेंगे. This is group number 1. प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप नंबर 1, प्लस के राइट हैंड साइड में ग्रुप नंबर 2. ओके, और मुझे बताओ ग्रुप में आपको कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो सेम है, जो फर्स्ट ग्रुप के पास भी है और जो सेकंड ग्रुप के पास भी है? यस, वेरी गुड वेरी गुड. 297 बिल्कुल. 297 17 का भी फ्रेंड है, 297 3 का भी फ्रेंड है. ओके, सो सेम नंबर you will write outside. Write outside which number? The number which is present in both the groups you will write here with multiplication sign. After that put bracket. ये मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, नाउ 297 बाहर आ गया. आपने दोबारा इसको अंदर नहीं लिखना. अंदर किसको लिखना है? 17 को बस, क्योंकि 217 ने लीव कर दिया, 17 को छोड़ दिया और बाहर आके बैठ गया. सिमिलरली प्लस साइन, 297 ने 3 को भी छोड़ दिया, 3 अकेला रह गया. दिस इज ओके. कॉमन, यस, वेरी गुड अग्रेम. कॉमन नंबर आउटसाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? Common means which is present in both the groups, in first group as well as in second group. Now 297 multiplied by 20. अब देखो आपकी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी. वेरी इजी. यस पावनी, व्हाट हैपन? पावनी धीर, unmute yourself. मैम हाँ जी बोलो. मैम मेरे को समझ नहीं आया. मैंने ये बोला है, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की 2 कंडीशंस है. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की 2 कंडीशंस हैं. फर्स्ट 2 नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, सेकंड 2 नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, और इनके बीच में कौन सा साइन होगा? प्लस का या माइनस का. ये कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की. ओके मैम. सेकंड कंडीशन है दोनों ग्रुप में एक नंबर सेम होगा.
297 फर्स्ट में भी है, 297 सेकंड में भी है। ये होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या करना है आपने, सेम नंबर को कॉमन लिखना है यहाँ पे। ओके, कॉमन लिखने Okay, के ma'am. बाद में ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो बच गए नंबर 297 तो बाहर आ गया, रह क्या गया 70। 297 तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 3, बस दैट्स इट। दिस इज नाउ मल्टीप्लाई। Okay, ma'am. 5940 and you have to write in exam distributive property. Here mention distributive property. अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, 1 और हाफ मार्क्स कट हो जाएगा अगर आप ये वर्डिंग मेंशन नहीं करोगे तो। Which property? Distributive property. Okay. Okay, ma'am. Now note down, after that I will explain B part. B part भी explain करती हूँ। B, C, C. B is your homework. We will discuss C. और पेपर में अगर यस कौशलिंदर अनम्यूट योरसेल्फ। मैम गुड मॉर्निंग मैम। कौशलिंदर पहले तो मुझे ये बताओ, कॉपी तो आपकी अभी तक नहीं मेरे पास पहुंची। मैम वो मैंने 3 days में लीव ली थी मैम, इसलिए मेरा काम पूरा नहीं है थोड़ा सा। मैम आज मैं आपको करके उस भेज रहा हूँ। अब तो हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म होने को आ गया। मैम बस रूल्स लिखने हैं, मैम वही लिख के बस भेज दे रहा हूँ। रूल्स तो मैंने आपको सेंड किए, वो तो आपने मुझे चेकिंग के लिए सेंड ही नहीं करने, आपने सिर्फ मुझे होमवर्क सेंड करना है। रूल्स तो मैंने आपको भेजे हैं, वो आपने मेरे ही देख के लिखने हैं, वो होमवर्क थोड़ी ना। ओके मैम, मैं आज भेज दे रहा हूँ। टेल मी द डाउट। मैम आपने फर्स्ट 297 को तो बाहर निकाल दिया मैम, सेकंड वाला 297 क्या हुआ? कौन सा? वो भी तो बाहर ही आया, ये तभी तो बाहर आया क्योंकि ये दोनों में था। ये आया ही बाहर इसलिए है क्योंकि ये दोनों में था। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये नंबर तभी बाहर आएगा जब वो दोनों में होगा, तभी तो मैंने ब्रैकेट डाली है। ये 297 यही है जो बाहर आया, तभी तो यहाँ पे 70 अकेला रह गया और 3 अकेला रह गया। ओके ओके मैम। उसने बाहर ही नहीं आना था, अगर वो दोनों के पास ना होता तो वो आएगा ही तभी बाहर जब वो दोनों ग्रुप के पास होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सी पार्ट। स्टूडेंट्स मैं आपको अगेन एंड अगेन कॉपीज का रिमाइंडर नहीं डालूंगी, ओनली आई विल कट मार्क्स अकॉर्डिंगली। ये मत सोचना टाइम पे कॉपी नहीं भेजोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नो मैं नहीं करती ऐसा। जैसे टाइमली कॉपी आएगी वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। 81265 मल्टीप्लाइड बाय 169 माइनस 81265 multiplied by 69. Okay. Now, Raghav, Arpit, Ishpreet, Arpit, unmute yourself. Ma'am. You are Yes, Arpit. ma'am. Arpit. Ma'am, yes. Yes, Arpit. Yes, ma'am. How can we solve? मैम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। नहीं वो बाद में लिखेंगे, वो बाद में। मैम पहले देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो भी रही है कि नहीं। मैम पहले हम इन्हें ग्रुप्स में करेंगे। Arpit, 1 minute. Yes, Ishpreet, unmute yourself. What happened here? मैम आई वांट टू आस्क दैट कि जैसे आप ये वाला करवा रहे हो, आप कह रहे हो कि अगर कॉमन नंबर है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर मैम नहीं अगर कॉमन नंबर है तो वो 5th क्लास में जैसे करते थे वैसे करेंगे। ओके मैम। हाँ जी बोलो अर्पित। मैम पहले हम इन्हें ग्रुप्स में करेंगे। यस
This is group number 1, and this is group number 2. Okay. Arpit, tell me the conditions for the distributive property. Distributive property का हमें पता कैसे लगता है कि distributive property apply होगी? मैम जब बीच में माइनस या प्लस का साइन हो तब पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बीच में प्लस और माइनस का साइन है और फ्रंट वाले 2 नंबर्स और बैक वाले 2 नंबर्स में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई और कोई कॉमन नंबर है, कोई कॉमन, ये 3 कंडीशंस हैं। इन बिटवीन प्लस और माइनस साइन, ओके, सेम यस मैम नंबर ग्रुप्स, फाइन। यस According to you, yes, Arpit, very good. Next is not for you. Yes, Kinjal, unmute yourself. Yes, ma'am. Tell me what is the next step. Now we will write 81265. 81265. Ma'am, then the sign of multiply. Yes, and this sign of multiplication is not a compulsion. Okay, हमें पता है ना, हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को हाइड कर सकते हैं, तो चाहे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डालो चाहे ब्रैकेट भी डायरेक्ट डाल दो, दोनों सही है। हाँ जी, आगे बोलो। Ma'am, now we will write 169 minus 69. Yes. Now 81265 multiplied by 100. 100. Ma'am, the answer is 8.26500. देखो आपका सेकंड स्टेप में सम कितना इजी हो गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये जो हमने प्रॉपर्टीज की है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इट विल मेक आवर सम इजी। ये इनका बेनिफिट है। एंड हियर यू हैव टू मेंशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Now next we have D part. Mehak, unmute yourself. Yes, ma'am. Mehak, tell me how can we solve D part? What do we do in D part? Ma'am, yes. Ma'am, we will solve this sum. मैम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी मैम, जैसे हम 5th में करते थे वैसे करना है। अच्छा, मैं तो कह रही हूँ लगेगी। मैं मैम इसमें कॉमन नंबर्स नहीं है। बिल्कुल, हम कॉमन नंबर नहीं है तो बना देंगे, बना सकते हैं। Now come to the D part. Students, listen very very carefully. D part. Fine. देखो 3845 multiplied by 5 multiplied by 782 plus 769 multiplied by 25 multiplied by 280. मैं तो कह रही हूँ भी मैंने तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही करना है। हाँ जी, एनीवन? दीपांशु, हर्षिका, दीपांशु unmute yourself. दीपांशु, रहमान unmute yourself. Yes, ma'am. रेमन, महक ने तो बोला है भी हम इसको 5th क्लास की तरह करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में प्लस कर देंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? एनी स्टूडेंट, इफ यू वांट टू रिप्लाई, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्विकली। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, बोलो। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 1 2 3। आपको लगता है किसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सेम नंबर बन सकता है? स्टूडेंट्स ट्राई करो बेटा, करो, चलो ट्राई। यस, ट्राई करो आप। मैम यस यस रेमन। मैम हम 769 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा?
आपके अकॉर्डिंग 769 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक है, करो मल्टीप्लाई और बताओ मुझे क्या आया। यस राघव, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 3845 into 5. चलो क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, करो जरा, बताओ मुझे जरा। 19925. 19925 फिर से करना मल्टीप्लाई। Ma'am, I got my answer. यस टेल मी रेमन, क्या आया? 3,845 by multiplying 769 multiplied by 25. क्या आया मल्टीप्लाई करके? 3,845. नहीं आपने किसको मल्टीप्लाई किया रेमन? No. आपने किसको मल्टीप्लाई की है? यस कौशलिंदर, अनम्यूट योरसेल्फ कौशलिंदर। मैम हम राउंड ऑफ कर देंगे नंबर्स को। राउंड ऑफ क्यों करेंगे? उसने आपको बोला है राउंड ऑफ करने के लिए, उसमें लिखा हुआ है कहीं राउंड ऑफ एंड सॉल्व योर सम। मैम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। यस स्वीट, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम 769 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से मैम, उसके बाद फिर हमको 3845 नंबर मिल जाएगा। मैम इधर कॉमन नंबर आ जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको आगे 7 मैम ब्रैकेट लगा के मैम उसके बाद 782 + 218 कर देंगे। फाइन। रेमन आप भी यही बोल रहे थे? मैम करना जरा इसको मल्टीप्लाई, 769 को 25 से देखना क्या आ रहा है। 3845 आ रहा है। मैम मुझे पता है। बताना जरा 3845 आ रहा है। मैम नो, मैम 19225 आ रहा है। बिल्कुल 19225 आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रीट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास क्या आएगा? प्लस 19225 मल्टीप्लाइड बाय 200। इसको मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा, 19225 मल्टीप्लाइड बाय 782। ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके। करो इन दोनों को मल्टीप्लाई। यस लाइक दिस, लुक हियर। 3845 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये आएगा 19,225। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 19,225। ओके नाउ सेम आ गया। दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। लुक बना दिया हमने सेम मल्टीप्लाई करके। नाउ आउटसाइड 19225 multiplied by 782 plus 218. Now add 782, 218, 1000. Yes, 19225,000. Like this. So here you will mention distributive property. Okay, you have to mention distributive property. So like this we will solve the sum. हमने same कर दिया because we have three numbers, 1 2 3 1 2 3. Multiply first two number, you will get this. Multiply first two number, you will get this. You will get same. Yes, Kinjal. Kinjal, raise your hand. Yes, unmute Kinjal. मैम मैंने पूछना था कि अगर जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहीं नहीं अप्लाई होती तो हम फिर वहां उसकी जगह कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? कोई भी नहीं लिखेंगे, उसको बस सॉल्व कर देंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा? ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। So note down. Note down. Then I will
disconnect the class and you will join again. Okay, students, you have done with this. Tell me.